Good morning, student. Today we will begin with unit number 3, elastic constant. For today's topic, we will cover theory on longitudinal strain and lateral strain, and we will also study Poisson's ratio. Apart from that, we will also study few more theory. The content in the unit. Number 1, longitudinal strain. 2, lateral strain. 3, volumetric strain. 4, bulk modulus. 5, shear stress. 6, shear strain. 7, modulus of rigidity. 8, single shear. 9, double shear. 10, punching shear. 11, relationship between modulus of elasticity, modulus of rigidity, bulk modulus. Now, in this unit, you have lot of various terms, various parameters which will be useful in strength of material. There is theory part and numerical part. For numerical part, you should understand properly the theory part. Once you are good with theory, once you remember the formula, it's an easy unit. Let's begin one by one with each parameters. Now, brief about this unit. There are three elastic constant, namely modulus of elasticity or Young's modulus, modulus of rigidity or shear modulus, and bulk modulus. These three elastic moduli differs from material to material, but for a particular material it remains constant. Knowledge of lateral strain, linear strain, Poisson's ratio, volumetric strain, biaxial and triaxial stresses is very important to find out these three elastic constant, that is E, G and K. We'll begin with the basics. Number 1, longitudinal strain. When an elastic body is subjected to an axial force, there is change in length. This change in length per original length is called as longitudinal strain or linear strain. Longitudinal strain is given by yield subset L, that is equal to delta L divided by L, where L is the original length, delta L is the change in length. Let's see in this diagram. ये डायग्राम देखिए आप लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का. ब्लैक कलर में बार है जो ओरिजिनल बार है. ये ब्लैक कलर में ओरिजिनल बार को दोनों साइड से फोर्स यानी कॉम्प्रेसिव फोर्स से हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सियली, यानी इसके साइड से क्रॉस सेक्शन एरिया है. क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम अप्लाई कर रहे फोर्स. वी आर अप्लाइंग क्रॉस सेक्शनली कॉम्प्रेसिव फोर्स. इट्स ओरिजिनल लेंथ इज L. ओरिजिनल लेंथ इसका कितना है आप नीचे देखिए, L है. अब जब कॉम्प्रेसिव फोर्स दोनों साइड से कर रहे हैं, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ अंदर की बाजू, तो ये बार को अंदर की बाजू पुश कर रहा है ना, दबा रहा है. तो इसकी वजह से क्या होगा, बार छोटा होगा, तो लेंथ विल डिक्रीज. हाउ मच लेंथ विल डिक्रीज, द लेंथ विल डिक्रीज. यहाँ पे पिंक या ऑरेंज कलर में जो बार दिया है उतना छोटा हो जाता है. उसकी लेंथ कितनी है, L माइनस डेल्टा L. तो ये डेल्टा L से और छोटा हो गया, यानी L माइनस डेल्टा L. ठीक है, तो ये है आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी अलोंग द लेंथ. अलोंग द लेंथ यानी उसकी लेंथ कितनी कम हो गई है.
ठीक है, या चेंज इन लेंथ। ओके, अब ये चेंज इन लेंथ की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, इसका मास जो है उतना ही होता है। तो जब हम इसे अंदर के बाजू दबाएंगे तो ये लेंथ छोटा हो जाएगा, लेकिन उसकी जो डायामीटर है या विड्थ है या थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम जब देखते हैं ये बार ऑरेंज कलर में जिसमें लिखा है बार विथ डिक्रीजिंग लेंथ, लेंथ तो डिक्रीज हो गया लेकिन उसकी डायमीटर बढ़ गया। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे इसमें कंसर्न सिर्फ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन है, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ यहाँ पे है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस। Next, lateral strain. Definition: when a body is subjected to an axial force, it is strained, that is elongated or shortened. लंबा होता है, खींचे जाता है या फिर छोटा होता है in the direction of applied force. But it is observed that it is also strained in the direction perpendicular to the applied force. Hence, the strain which is set in the perpendicular direction to the applied force is called as lateral strain. Let's us understand this with the help of a diagram. डायग्राम दिया गया है, आप देख रहे हैं। जो पहले डायग्राम था लीनियर स्ट्रेन यानी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में, वही डायग्राम रिपीट किया गया। यहाँ पे भी ओरिजिनल बार ब्लैक कलर में था, स्क्वायर में, ब्लैक रेक्टेंगल में, दोनों तरफ से ब्लू कलर में देखे गए कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है। बार जब छोटा हो जाता है फोर्स एक्ट होने की वजह से, तो पिंक कलर में ये बार दिखा गया है। अब यहाँ पे आप देखते हैं L ओरिजिनल लेंथ था, बाद में इसकी लेंथ छोटी होगी, कितनी हुई L माइनस डेल्टा L, ठीक है ना। अब लेंथ तो छोटी हो गई, मास तो उतना ही था, तो मास कहा जाएगा, कहीं ना कहीं फैल जाएगा, लेंथ छोटी होगी, तो यहाँ पे उसका डायमीटर जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ओरिजिनल डायमीटर D, ब्लैक कलर का जो दोनों बाजू से एरो D, ये ओरिजिनल डायमीटर था, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बाद लेंथ छोटा हो गया और डायमीटर बढ़ गया। तो बार विथ इंक्रीज डायमीटर बाय डेल्टा D यह दिया गया है, यानी बार का फोर्स अप्लाई करने के बाद जो डायमीटर है बढ़ गया है या डेल्टा D से बढ़ गया है, तो डायमीटर बन जाता है इसका D प्लस डेल्टा D, D प्लस डेल्टा D। अब हम जब लैटरल स्ट्रेन कहते हैं तो चेंज इन डायमीटर, डायमीटर कितने से बदला, डेल्टा D से बदला, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर कितना है D है, therefore lateral strain is equal to delta D divided by D, delta D divided by D। Lateral strain, same theory part. Consider a bar of diameter D subjected to a compressive force P as shown in the figure. Due to this compressive axial force, the length of the bar is shortened in the direction of applied force, but the diameter of bar is increased by an amount say delta D। जैसे हमने डायग्राम में देखा है, लेंथ
छोटा हो गया है, लेकिन डायमीटर डेल्टा डी से बढ़ गया है। देन lateral strain is equal to E suffix LA और E subscript LA is equal to delta D change in length divided by D original length. Delta D change in diameter divided by original diameter D. So this is lateral strain. So हमने पहले लॉन्जिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन पढ़ा, उसके बाद लैटरल स्ट्रेन पढ़ा। आइए अब हम तीसरा देखते हैं, पॉइजन्स रेशियो। द रेशियो ऑफ lateral strain to linear strain is called as Poisson's ratio. It is denoted by mu. Poisson's ratio is equal to mu or 1 divided by m is equal to lateral strain ELA divided by linear strain. तो हमने जो पहले पढ़ा है lateral strain और longitudinal या linear strain, बस वो दोनों पैरामीटर ले लिए हैं हमने पहले, नंबर 1 नंबर 2, और lateral strain divided by linear strain Poisson's ratio है। Negative sign in above expression indicates that the lateral strain and the linear develops in opposite sense or nature. Value of Poisson's ratio generally varies from 0.25 to 0.5 for different material. Next, change in lateral dimension. अब हमको कुछ फॉर्मूला डेवलप करना है, आगे हमें बाकी के पैरामीटर्स भी स्टडी करना है, इसलिए हम थोड़ा ये जो चेंजेस होता है कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो चेंजेस हमें निकालना है। आगे सब कुछ हमें ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी तो हम केवल थ्योरी देखेंगे, ठीक है ना। चेंज इन लैटरल डायमेंशन। अब चेंज इन लैटरल डायमेंशन हम बार का ले रहे हैं जो रेक्टेंगल शेप में है, वो स्टडी करेंगे, और फिर सर्कुलर बार का भी रखेंगे कि दोनों पे आपको न्यूमेरिकल आएगा। इसमें आपको ये याद दिला दे कि हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तब भी आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल SOM लैब में ये जनरली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे किया जाता है। तब आप जब आंखों देखा रहेगा, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कंसेप्ट और अच्छे से आएगा। अभी आप केवल इमेजिनेशन कीजिए। Change in lateral dimension of rectangular bar due to axial force or axial load. Consider a rectangular bar of length L, width B and thickness T, subjected to axial pull as shown in figure. Due to this axial pull P, the length of bar is increased in the direction of applied force by small amount, say delta L. At the same time, the width B and the thickness of bar T is shortened by small amount, say delta B and delta T respectively, in the perpendicular direction to the applied force. अब ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या देखा है। चेंज इन लैटरल डायमेंशन, पहले हमने एक रेक्टेंगल बार लिया है, ओके। अब ये रेक्टेंगल बार
ओरिजिनल जो कलर था, ओरिजिनल ब्राउन कलर में जो दिखाई दे रहा है, ओके, या मरून कलर में, ये ओरिजिनल था। दोनों तरफ से हमने पी टेंशन फोर्स एक्चुअली सब्जेक्ट किया है, अप्लाई किया है। ये दोनों तरफ से पी और पी ये पुल है, यानी खींच रहा है इसको। जब ये खींचेगा तो ये ब्राउन कलर का बार एक्सटेंड होगा। हमने जो ब्लैक कलर में दर्शाया है या दिखाया इस डायग्राम में, वो शेप में आ जाएगा। ठीक है, फोर्स होता है तो डिफॉर्म होता है, तो यहाँ डिफॉर्म ये हो रहा है, यानी लेंथ दोनों तरह से खींची जा रहा है, तो इसकी लेंथ बढ़ गई है। तो ओरिजिनल लेंथ आप डायग्राम में देखेंगे ब्राउन कलर में एल था, फिर चेंज इन लेंथ हुआ यानी डेल्टा एल से, तो लेंथ बढ़ गया टोटल एल प्लस डेल्टा एल, यानी ब्लैक कलर में जो लेंथ है वो एल प्लस डेल्टा एल। अब मास तो उतना था, फिर मास किधर गया, तो मास जब खींचे गया तो क्या हुआ, उसकी थिकनेस कम होगी, उसकी विड्थ कम होगी। तो यहाँ पे दिखता है बी माइनस डेल्टा बी, ब्लैक कलर में जो है बी माइनस डेल्टा बी, यानी डेल्टा बी से इसका विड्थ कम हो गया। वैसे ही थिकनेस टी माइनस डेल्टा टी, यानी ओरिजिनल टी था, अब डेल्टा टी से कम हो गया, तो इसकी थिकनेस बन जाती है टी माइनस डेल्टा टी। आई होप डायग्राम से आपको समझ में नहीं आ रहा। नोट दैट द lateral strain is opposite to that of linear strain, meaning that if lateral strain is compressive, then linear strain is tensile and vice versa. क्या कहता है ये डायग्राम हमने देखा है, तो डायग्राम में lateral strain होता है, तो lateral strain में यदि compressive होता है तो linear strain में टेंसाइल होता है। अब यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन देखिए, यानी लंबाई में देखिए कि ये बढ़ रहा है, खींचे जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका लैटरल जो है यानी विड्थ में या थिकनेस में या डायमीटर में कम होगा, यानी कॉम्प्रेसिव होगा, यानी दबे जाएगा। तो हमने पहले डायग्राम में वही देखा है। ठीक है, तो कभी भी लीनियर स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक टेंसाइल होगा तो दूसरा कॉम्प्रेसिव होगा। Now we will find a mathematical expression to the parameter. Let E is equal to modulus of elasticity mu Poisson's ratio. Linear strain हमने देखा E is equal to change in length divided by L, original length, delta L by L. Now is equal to delta L by L, ये हमने पहले स्टडी किया है पिछले यूनिट में, इज नथिंग बट P डिवाइडेड बाय AE, P डिवाइडेड बाय AE। ठीक है, P डिवाइडेड बाय A यानी स्ट्रेस सिग्मा है, डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय E, यानी स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये ऑलरेडी हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं। सो इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय, अब A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी B इंटू T इंटू E। सो दिस इज लीनियर स्ट्रेन। अब दूसरा है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या दिया है, हमने अभी पढ़ा है, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू E यानी लीनियर स्ट्रेन, और पॉइजन्स रेशियो म्यू, यानी लीनियर स्ट्रेन को उधर ले लिया हमने इक्वेशन की उस साइड, तो पॉइजन्स रेशियो से मल्टीप्लाई होता है, तो हमको मिलता है लैटरल स्ट्रेन। बट E इंटू यू इज इक्वल टू डी बी बाई बी इज इक्वल टू डी टी बाई टी, डी बी बाई बी इज इक्वल टू डी टी बाई टी, यानी लैटरल स्ट्रेन है। हमने लैटरल स्ट्रेन पढ़ा है, चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर, या चेंज इन विड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ, या चेंज इन थिकनेस डिवाइड बाय ओरिजिनल थिकनेस। अब ये रेक्टेंगल सेक्शन था, इसलिए यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लैटरल स्ट्रेन इज डेल्टा बी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी।
हमने अभी ही डायग्राम में पढ़ चुके हैं ये लैटरल स्ट्रेन का, ठीक है। सो ये हमको मिलता है dB by B इज इक्वल टू डेल्टा T by T। नाउ नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल एक बार का लेंगे, ठीक है, जो सर्कुलर शेप में है। चेंज इन lateral dimension of a bar of diameter d subjected to a compressive force P as shown in figure. Due to this compressive axial force, the length of bar is shortened in the direction of applied force P, but diameter of bar is increased by an amount of delta D. अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सर्कुलर बार लेते हैं, सर्कुलर बार में दोनों तरफ से कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स अंदर की बाजू दबाता है, तो वो लेंथ उसका छोटा होता है, लेंथ छोटा होता है तो उसका डायमीटर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हम स्टडी करते हैं अभी। We will study the diagram. यह डायग्राम देखिए, ओरिजिनल जो था ब्लैक कलर में था बार, दोनों तरफ से फोर्स कॉम्प्रेसिव फोर्स P एरो की फेस में दिखाया गया, अप्लाई हो रहा है। नाउ व्हाट इज डूइंग, इट्स पुशिंग टुवर्ड्स इनसाइड। तो इसका ओरिजिनल लेंथ L है, चेंज इन लेंथ हो रहा है डेल्टा L, तो चेंज बाद में लेंथ होता है, कितना होता है, L माइनस डेल्टा L। यहाँ जो मरून कलर में दिखाया गया ये बाद का लेंथ है L माइनस डेल्टा L। यहाँ लेंथ छोटा हो गया तो क्या होगा, डायमीटर बढ़ जाएगा, मास तो उतना है तो लेंथ छोटा हो गया तो ये साइड से फैल जाएगा, तो डायमीटर कितना है, डेल्टा D उतना चेंज हो गया है। सो D प्लस डेल्टा D इज द चेंज इन डायमीटर। Original diameter D is increased by an amount of delta D. Let E is equal to modulus of elasticity and mu is equal to Poisson's ratio. Linear strain E is equal to change in length delta L divided by original length is equal to P divided by AE from previous unit formula is equal to P divided by A। अब यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार का क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 d square in bracket E। The lateral strain is change in diameter divided by original diameter delta D divided by E। पॉइजन्स रेशियो के फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज डाल दिए। पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है, म्यू और 1 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसमें डाल दीजिए, लीनियर स्ट्रेन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसमें डाल दीजिए। लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू, लैटरल स्ट्रेन को हमने उधर ले लिया है, और हमें क्या मिलता है, लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू E into mu। linear strain is E and mu is Poisson's ratio। so lateral strain ELA is equal to delta D divided by D is equal to E into mu is equal to E into mu। Note that lateral strain is opposite to that of linear strain, meaning that if lateral strain is tensile then linear strain is compressive and vice versa। यानी lateral strain और linear strain एक दूसरे के अपोजिट है, ये हमने पहले रेक्टेंगल बार में भी स्टडी किया। तो यानी lateral strain
अगर टेंसाइल है यानी लेंथ बढ़ रहा है वहाँ, तो लीनियर स्ट्रेन का कम हो रहा है। जब बढ़ रहा है मतलब टेंसाइल है, कम हो रहा है तो कॉम्प्रेसिव है। तो लीनियर स्ट्रेन यहाँ पे कॉम्प्रेसिव है, इसकी लेंथ कम हो रही है। तो वैसे ही लैटरल स्ट्रेन में यहाँ पे डायमीटर है वो बढ़ रहा है, तो एक दूसरे का अपोजिट होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, जस्ट कीप दिस माइंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे समझ में आना चाहिए। थैंक यू, दैट्स फॉर द डे।